Okay, now listen. Quiet, please. चलो now संभाल के जाना मान लेवल का है come on आदत से मजबूर कैमरा भी तक भी हाई करना चलो let's wind up with that हाँ आज कुछ नया स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ सबसे पहला ऑलरेडी एक क्वेश्चन टू पेज 194 क्वेश्चन नंबर 2 पेज 194 three sums but all three are very damn important sums okay five down तीन sums front 2 7 and 11 module all three are modules आज 10 हो जाएगा आपका अभी सुनो चैप्टर कंप्लीट हो गया पेज 194 सम नंबर 2 साइलेंस डाउन प्लीज फोकस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में मैंने जो किए थे वही लेवल के प्रॉब्लम्स है चलिए एकदम ध्यान से सम नंबर 2 क्वाइट प्लीज फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ होम एंड कंपनी आएगा फाइनल Following is the balance sheet of home and company in which X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2. Okay? Silence now. तीनों सम बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लेक्चर के सम याद है ना बड़े बड़े किए थे हमने वही टाइप के हैं तो नजर हटी दुर्घटना घटी ध्यान से Following is the balance sheet of home and company in which X, Y, Z are partners sharing profits and losses as 1:2:2. As of 31st March 16, Mr. Z died on 31st December 2016 and his account is to be settled on the following terms. Mila? Z died on 31st December 2016. Balance sheet दी गई है 31st March की and you can see goodwill in the balance sheet. Yes? Okay. What are we supposed to do with the goodwill in the balance sheet if you all remember? डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स में साफ हो जाता है हमेशा पुराना परचेज गुड याद आया चाहे आप एडमिशन कर रहे हो रिटायरमेंट कर रहे हो डेथ कर रहे हो ट्रीटमेंट रिमेन्स सेम ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल OR just simply distribute them goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 3 years profits and losses the profits and losses for the 3 years were as follows 30 20 and 10,000 का लॉस है दिख रहा है now profit for the period from 1/4/16 to 31/12/16. What is 1/4/16 to 31/12/16? Date of balance sheet to date of death. The profits for the period from 1/4/16 to 31/12/16 shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of preceding 3 years. ये क्या statement का मतलब? Dots to dot for what? Share of profit. Share of profit is to be taken on the basis of how many years average? 3 years average.
तो गुडविल के लिए भी 3 साल का एवरेज है और शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए भी 3 साल का एवरेज है, दोनों के लिए 3-3 साल का एवरेज है. ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2016, मतलब just before the death, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/15 and was debited to traveling expense, on which depreciation is to be calculated at 20% per annum. The asset is to be brought into account at its depreciated value. इसका मतलब समझा कुछ? एक एरर हो गया था लास्ट ईयर में. क्या एरर हो गया था? आपका कार आपने खरीदा था लेकिन उसको डेबिट कर दिया था किधर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया था. तो उसको क्या करना है अभी? वापस रिवर्स करना पड़ेगा. बराबर है? हेलो. अदर वैल्यूज ऑफ एसेट्स वर अग्रीड अपॉन एज फॉलोज. इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 140, कंप्यूटर्स 50, इन्वेस्टमेंट 6,000, पेड रिसीवेबल्स है कंसीडर्ड गुड. इसका मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है. Calculate goodwill and share of profit, Z share of profit for the firm. Prepare reval account, assuming that other items of assets and liabilities remain the same. What is that? Memorandum reval. And prepare partners capital account and balance sheet. मतलब पूरा ही full fledged sum है death का. What? Full fledged sum. Module sum. Now इसमें याद है हमने एक बार वो किया था प्री रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट. वैसे यहाँ पे प्री डेथ एक चीज करनी पड़ेगी अपने को कि वो रेक्टिफिकेशन पार्ट है. वो रेक्टिफिकेशन पार्ट दिख रहा है आपको? वो कौन से साल में अपने कार का लोचा मारा था? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16, राइट? 31st March 16. और अपने को कब का अकाउंट्स बनाना है? 1/4/16 से लेके 31st December 16, क्योंकि he died on 31st December 16. Are you understanding? 15-16 का साल खत्म हो गया. उसके बाद अप्रैल 16 से लेके दिसंबर 16 तक वो जिंदा था और उसके बाद गया. इज इट क्लियर? तो अपने को वो 9 महीने का अकाउंट्स अपडेट करके दिखाने हैं. बट मिस्टेक कब हुई थी? कार का ट्रैवलिंग एक्सपेंस कब हुआ था? For the year ended 31st March 16. So अपने को क्या करना है? पहले वो कार का रेक्टिफिकेशन खत्म करना पड़ेगा. अब रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हो आप? सेम अकाउंटिंग ईयर पे कर रहे हो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हो? बताओ. मिस्टेक कब हुई थी? मिस्टेक कब हुई थी? लास्ट ईयर हुई थी. और रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हो आप? करंट ईयर में. करंट ईयर कौन सा है समझ में आ रहा है? This is balance sheet as on 31/12/16 की 31st March 16. हाँ जी, 31st December 16 का कर रहे हो ना? हेलो. तो एरर कब हुई थी आपकी? 31st March 16 के साल में हुई थी. तो can I go back in time and rectify it in the year 15-16? No. So how do you rectify the entries in the next year? Profit and loss adjustment. Profit and loss adjustment. What is profit and loss adjustment account? Reval account. So सबसे पहले balances लिख देते हैं हम लोग. कौन है 3 पार्टनर्स? ABC, XYZ. What are the balances? Check. By balance BD XYZ. 40, 80 and 80. These are the balances. और अभी वो कार वाला पहले खत्म कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं कार का पार्ट. उसके बाद लेट्स प्रोसीड अहेड. क्या हुआ था इन द ईयर 2016? पढ़ो. During the year ended 31st March 16, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/15 and was debited to traveling expense, on which debris is to be calculated at 20%. मिला? पहले तो कार का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया है, तो व्हाट वुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री? कार खरीदने की एंट्री क्या होती है? कार टू कैश. जल्दी से डाल दिया ट्रैवलिंग टू कैश. रिवर्स कैश टू ट्रैवलिंग. रेक्टिफाइड कार टू ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग यूज नहीं कर सकते, नॉमिनल अकाउंट है तो कार टू पीएनएल एडजस्टमेंट. तो कार टू पीएनएल एडजस्टमेंट. तो पीएनएल एडजस्टमेंट में क्या आना चाहिए? बाय कार अकाउंट कितना? 40,000. ये पहला रेक्टिफाई किया. बाय कार अकाउंट 40,000. एम आई राइट? बाय कार हो गया 40,000. करेक्ट.
तो गलती से आपने कार के जगह एक्सपेंस बता दिया था, तो हमने वापस रेक्टिफाई किया। ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा, अभी इसका जो भी डेप्रीसिएशन है वो बढ़ेगा कि घटेगा? याद करो, रेक्टिफिकेशन जब जब एसेट डेबिट होता है तो डेप्री बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्री ऑन कार? डेप्री टू कार, डेप्री टू कार। कार तो एसेट है, बट डेप्री कैन आई यूज डेप्री अकाउंट? I can't use डेप्री, so I have to use P&L adjustment. So P&L adjustment to car, P&L adjustment to car. तो इधर आ जाएगा टू कार, कितना? 20% ऑफ 40,000 फॉर फुल ईयर और 6 months? फुल ईयर। ये कौन सा चालू है अपना? लास्ट ईयर चालू है। लास्ट ईयर का ही रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। 1450 को ली थी गाड़ी, दिख रहा है? तो फुल 12 महीना डेप्रिशिएट करेंगे तो कितना हो गया? 8,000 हो गया, बराबर है? इज दिस पार्ट क्लियर? ये कब हुआ था? डेथ होने से पहले, पिछले साल में हुआ था। एंड इमीडिएटली इसका प्रॉफिट लॉस, वेयर डू यू ट्रांसफर इट? इतना जो भी प्रॉफिट लॉस है आपका, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर्स बेयर करेंगे? तीनों बेयर करेंगे। याद आया? पिछले साल का प्रॉफिट गोज टू कैपिटल आफ्टर रेक्टिफिकेशन। क्या किया मैंने, समझा? और भी है वो तो, बाकी के रिवैल्यूएशन वो तो 31 मार्च से 31 दिसंबर का है। ये प्री डेथ है, ये पिछले साल का रेक्टिफिकेशन आप कर रहे हो। 1415 से लेके 31 मार्च 16 सबका साथ में भी किया तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पार्ट अलग से किया तो बेटर है। ओके, वहां पे भी हमने अलग से किया था, अगर याद होगा, प्री रिटायरमेंट में एक पुराने प्रॉफिट निकाले थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था, तो रेम्यूनरेशन डाल के नया प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया था, फिर रिवैल वगैरह किया था, अगर याद होगा। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर भी, सेम चीज। अगर एंड में भी करोगे प्रॉफिट लॉस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ रहा है इसका? 32,000। कितना आ रहा है डिविजन? 6400, 12,800 एंड 12,800। तो टू पार्टनर्स कैपिटल तो आ जाएगा बाय रिवैल या बाय P&L एडजस्टमेंट 6400, 12,800, 12,800, बराबर है। एंड कार, फिलहाल आपके बैलेंस शीट में भी कार की वैल्यू कितनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी? कार की एसेट कितने का आ गया है? 32,000। क्या किया आपने, समझ में आया? पुराना कार एक्सपेंस में बढ़ा था, तो एक्सपेंस घटा, एसेट बढ़ा। लास्ट ईयर के ही फर्स्ट डेट पे हुआ है, 2 साल का ही आएगा। अभी तक हमने सिर्फ 31 मार्च 16 तक का किया है, अभी और 9 महीने का बाकी है, वो करंट रिवाइज में कंसिडर करेंगे। हाँ हाँ, फिर अभी और 9 महीना डेथ तक का वो करना बाकी है। अभी तक हम लोग ने खाली 31 मार्च 16 तक का रेक्टिफिकेशन किया है। That's why I told you this is the pre-death part. ये डेथ अभी तक साल चालू हुआ ही नहीं है 16 का, ये हमने कभी किया? 31 मार्च 16 को किया है फॉर द ईयर 15-16। 31 मार्च 16 को फॉर द ईयर 15-16। होप यू आर गेटिंग दैट? तो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन, पिछले साल कार क्या हुआ था? एक्सपेंस में डाला था, एक्सपेंस से वापस कार क्या हो गया? एसेट। तो अभी एसेट बढ़ा, एक्सपेंस घटा, एसेट बढ़ा, अगर एक्सपेंस घटा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर है? तो कार बढ़ा, एक्सपेंस घटा बाय हाउ मच? 40, एंड देन डेप्री चार्ज किया तो एक्सपेंस बढ़ा, कार घटा। सो नेट नेट क्या हुआ? कहने से कार बढ़ा और एक्सपेंस घटा बाय 32। कार बढ़ा एंड एक्सपेंस घटा बाय 32,000। इज दिस क्लियर? 15-16 के साल का। तो कार बढ़ा, एक्सपेंस घटा, मतलब प्रॉफिट बढ़ा बाय 32,000। दिस टोटल इज 32। यही किया है हमने अब तक। अभी हम लोग डेथ का प्रोसेस शुरू करेंगे, अभी हम लोग डेथ का प्रोसेस शुरू करेंगे, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 2016 टू दिसंबर 2016। कंफर्टेबल? ये कौन सा रेक्टिफिकेशन था? प्री डेथ, डेथ वाले साल के पहले वाला। 15-16 वाला हमने अभी रेक्टिफाई किया। साथ में भी कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, पूरा साथ में किया तो भी चलेगा, ये थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, दैट्स व्हाई आई डिड इट इन 2 पार्ट्स। ओके, 15-16 मरा 16-17 में, तो प्री डेथ प्रॉफिट
तीनों को ही जाता है। हाँ मतलब ये मैंने अलग किया है, अगर आप साथ में करो तो फाइनल प्रॉफिट जाएगा सब एडजस्ट। गुडविल की कैलकुलेशन में लास्ट ईयर हाँ वो आ रहा हूँ ना उसमें आ रहा हूँ। मेमोरी वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं बोला है कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी केप्ट एट देयर ओरिजिनल वैल्यूज। इट्स नॉट मेमोरी वैल्यू। उधर क्या दिया है? अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी केप्ट एट देयर नॉर्मल रिवैल्यू। इट्स नॉट मेमोरी वैल्यू। समझा? सादा है सॉरी, if I told memory val, my bad, it's not memory val। उधर क्या दिया है? इधर दिया है prepare revaluation account assuming the other items of assets and liabilities remain the same। other मतलब normal। when do you make memory val? when all assets and liabilities should be kept at same। no memory normal, ये तो normal reval बना है। ओके ये पार्ट पहले समझ में आया। प्री डेथ का 15-16 का उड़ा दिया। यहाँ पे और भी कुछ रेक्टिफिकेशन होता है तो ट्रीटमेंट रिमेन सेम। पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू करो, प्रॉफिट लॉस डाल दो। अब डेथ के पार्ट पे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस। बैलेंस लिख दिया है आपने। बैंक है कि कैश, वो भी बैंक का तो जरूरत नहीं है, चलो तो लिख लो। टू बैलेंस पीडी ऐसे ही रहेगा, 20,000 खाली का खाली जाने वाला है। रिजर्व्स वगैरह कुछ है, जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको जाएगा? ऑल द 3 पार्टनर्स। यस हेलो कितना आएगा? आई थिंक 10 20 20 30,000 6 12 12। अब मैं नॉर्मल डेथ का पार्ट चालू कर रहा हूँ। पहला मैंने कार का खत्म कर लिया, पिछले साल का रेक्टिफिकेशन सब खत्म किया। अब 16-17 जो 9 महीने के अकाउंट्स है ना, वो मैं बनाने जा रहा हूँ। समझा? हेलो, पिछले साल का रेक्टिफिकेशन समझ में आया? प्रॉफिट लॉस चला गया, कार बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, एसेट आ गया 32,000 पे। अभी ये साल जो 9 महीने हुए हैं ना, जब वो जिंदा था, उसका हम लोग सब कर रहे हैं, रिवैल वगैरह सब कंप्लीट कर रहे हैं, नॉर्मल डेथ का प्रोसेस। तो पहला स्टेप है आपका बैलेंस, तो पहले लिख दिया था, कैपिटल हो गया आपका और रिजर्व हो गया, न्यू कैपिटल है नहीं। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? गुडविल है, राइट? लेट्स गो फॉर गुडविल। ध्यान से, सबसे पहले तो पुरानी गुडविल साफ करनी है। किसको जाएगी पुरानी गुडविल? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में पुरानी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। कौन से रेशियो में? OR, that is 1:2:2। पुरानी गुडविल दिख रही है मेरे को 30। Can I say it will be 6 12 12? हेलो, पुराना गुडविल साफ 6 12 12। ऑल ऑफ यू एग्री? मिला? इनॉन हेलो, गाड़ी तो नहीं। अभी नई गुडविल का कैलकुलेशन के बारे में क्या दिया? रीड क्या दिया? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल का एवरेज लेके करना है अपने को, इंटू 2 करना है। यस, but the profits, are they correct profits or incorrect profits? Because 31st March 16 का प्रॉफिट 30 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 10 का लॉस दिया है। तो चलो 14 और 15 के प्रॉफिट का मेरे को टेंशन नहीं है, बट 16 का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 62 होना चाहिए कि 30 होना चाहिए? हाउ? रेक्टिफिकेशन किया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो आपका वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं है 30, कितना होना चाहिए प्रॉफिट? 62,000 होना चाहिए। बात समझ में आई? So based on 3 years average, how come it is 62? समझा? 40 से बढ़ा, 8 से घटा। So यहाँ पर लिख देने का, when you make the note years and profit, प्रॉफिट्स में आपको अलग से कुछ कॉलम वॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। Simply when you write the profits, this is 2014, 2015, 2016,
2014 I think it is loss of 10,000, so put it under brackets, ये minus हो जाएगा. This is 20,000 and this is not 30, it is 30 plus 32, that is 62,000. Okay, directly लिख सकते हो. Already rectification वगैरह ऊपर दिखाया हुआ है, तो अलग से पूरा करने की जरूरत नहीं है, column and all. 30 plus 32, that is 62,000. Okay? फिर 8,000 का डेफिसिट कितना बनेगा? 12, क्योंकि 1 अप्रैल को लिया था गाड़ी, डेट दिया है 1 अप्रैल 15 को लिया था, पूरा 15 16 12 महीना डेप्रिशिएट 20%, बराबर. ये ईयर का ये ईयर का बात नहीं, रिवाइल के वक्त आएगा. मिला 2016 तक का. Add it up, how much do you get? 62, 82, 72,000 is the total. Average कर लो, what is the average profit? 72,000 divided by 3, 24, and what is your goodwill? Total goodwill आएगा 24 into 3, that is 72, 2 ना? 24 into 2 is 48. अब NR दिया है कुछ? Do you have NR? No NR, that means remove the debt partner. Who died? Z. 1:2 is GR, 1:2 is NR. What you can do is straight share of goodwill ले लो सीधा. Z's share of goodwill shall be how much? 48,000 into 2 by 5, which is 19,200, and this can be divided in the ratio of 1:2 between X and Y. That's 6,400 and 12,800. Hope this is clear. What is the entry for this goodwill? X, Y to Z. इधर OR minus NR टोटल करने की जरूरत नहीं है, वो भी कर सकते हो. वापस OR करो माइनस NR is 1:2 मालूम है ना. OR NR GR सेम है, Z गया. OR minus NR करो, फिर टोटल से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा. ये थोड़ा इजी हो जाता है. जब भी NR ना दिया हो तो आप इजी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, समझा. तो 1:2 इन द GR जो आप 12th में करते हो. गॉट इट. X, Y to Z समझ में आया? X, Y में 2Z क्या है? कितना? 6,400 and 12,800, right? X, Y में 2Z और Z में by X and by Y. Z में by X by Y 6,400 और 12,800 मिला. 6,400 and 12,800. Is that clear? गाड़ी दोनों मिला कि नो? ओके ओके. करें आगे. All right. Now रिवैल पे जाते हैं. फटाफट रिवैल लिखते जाओ. क्या क्या आइटम्स है अंडर रिवैल? चेक 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 चेक. व्हाट आर आइटम्स डू वी हैव? बोलते जाओ मुझे क्या है. 2 बाय कितना? और बोलो. 2 बिल्डिंग के बाय बिल्डिंग. बाय बिल्डिंग 20,000 मिला. बाय बिल्डिंग 20,000. और क्या है? वो अलग अलग बैलेंस सेटिंग अच्छी लिखा अलग लाइन में करने की जरूरत नहीं. 2 कंप्यूटर्स कितना? 30,000. 2 इन्वेस्टमेंट्स फॉर और 1 मिनट. 2 इन्वेस्टमेंट फॉर और RDD जरूरत नहीं है ना.
ऐसे भी नहीं है, गुड ही है, डेटर्स आर गुड। अभी एक और चीज लिखनी है यहाँ, क्या? डेप्रिसिएशन बाय कार। कार अभी अभी आई है, तो कार बढ़ी के घटी और घटी। पिछले 12 साल, पिछले 12 महीने में तो घटी ही थी 20%, और ये 9 महीने में और घटी है कितनी? 4800। कौन सा मेथड है? आरबीएम एफआईएम? पढ़ो, उधर दिया है 20% दे के छोड़ दिया है, डब्ल्यूडी भी दिया है ना, मॉडल में डब्ल्यूडी भी नहीं है, बट डब्ल्यूडीवी ही कंसिडर करने का, कुछ नहीं दिया है तो ऑलवेज इट इज विच मेथड? आरबीएम। तो आरबीएम नोट डाल के लिख सकते हैं ना। नहीं, आप मुझे बात बताओ, फाइनल अकाउंट करते हो, ट्रायल बैलेंस से उठाते हो गाड़ी, एप्रिशिएट करते हो, कौन से वैल्यू पे करते हो? ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस? डब्ल्यूडी। So in the absence of any information, you assume it is RBM. Assume it is always RBM. कभी देते हैं आपको ट्रायल बैलेंस में कि एसेट का कॉस्ट इतना था, इस पे एफआईएम मारो? नेवर। You take the balance and you apply depre. So always assumption is depreciation is on RBM method, WDV method. Is it clear? तो किस पे लेना है? 40 पे कि 32 पे? 32 पे 20% फॉर 9 मंथ। 32 पे 20% फॉर 9 मंथ कितना आता है? 4800। अब देखो, अब ये ऊपर का माला मत लेना, ये 20,000 से लेना। प्रॉफिट है, लॉस है? लॉस है ना, ये लॉस है। अब ये किस में जाएगा? ये बाय पार्टनर कैपिटल किस में जाएगा? तीनों को, एक्स वाई जेड। इसलिए मैंने आपको तभी बोला ये पूरा लॉस एक साथ भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर वाला कार अलग से किया, नीचे वाला पार्ट अलग से किया, बट यू कैन डू इट पूरा साथ में, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए प्री डेथ अलग किया और डेथ का टाइम का अलग किया। बताओ कितना आ रहा है? 4,500। अच्छा, this is 22,800 and 4,560 9120 and 9120। corresponding effect में आएगा 2 रिवाल 4,560 9120 9120। Got it? ऊपर मैंने खाली कार का एक लिया था क्योंकि पीरियड है 15-16 था, बाकी पूरा मैंने अलग से बताया रिवाल में। और रिवाल में कार का डेप्री समझ में आया आपको? पक्का पक्का? हेलो हेलो, गाड़ी तो करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय पार्टनर कैपिटल का 2 रिवाल पार्ट इज डन, हो गया। देख लो, रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अभी कार में, कार विल बी नॉट 32,000, इस पे और डेप्री आएगा फॉर 9 months। दिस इज आई थिंक 4,800। सो कार वैल्यू विल नाउ बिकम आई थिंक 27,200। एम आई राइट? हेलो, हाँ वो डायरेक्टली लिख 27,200 लिख सकते। बाकी एसेट्स का तो रिवाइज वैल्यू दे दिया आपको, दैट इज आई थिंक इन्वेंट्री इज 16। व्हाट एल्स वी हैव? बिल्डिंग, दैट इज 1,40,000 और कंप्यूटर्स आर 50,000 और इन्वेस्टमेंट्स are 6,000. Trade receivables are good. So trade receivables, that is 20,000. Hello? Got it? Yes. मिल्ला 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 किनोय।
अभी अपने को दिया है कि we have to also calculate one last thing, that is share of profit. That is also based on how many years average? 3 years average, yes. Hello. Share of profit is also based on how many years average? 3 years average. Which 3 years? Same 3 years. 14, 15, 16. तो वापस average लेने की जरूरत है कि नहीं? Not needed. So what is your average profit? I think 24,000. Hello. मिला? Share of profit. Average profits are 24,000. But 24,000 अकेला Z का है कि सबका है? हाँ? बोलो. और अपने को क्या चाहिए? Z का शेयर चाहिए for how many months? So 24,000 into 2 by 5 into what? 9 by 12. How much? कितना आ रहा है? 7,200 आया. What is the entry for that? P&L? Suspense. So buy P&L suspense account. कितना? 7,200. And what is the second effect of P&L suspense? As ऊपर लिख रहा हूँ. बैलेंस शीट में P&L suspense 7,200. Is it clear? जगह नीचे नोट था ना तुम नीचे लिखो. मैंने ऊपर लिखा हुआ है P&L suspense ये रहा 7,200. How are we settling the debt now? हो गया ना और कुछ नहीं है ना? लोन है तो 2 Z's executors loan कितना आ रहा है? 1,1,0,080 and balance 35,440 and 7,0880. कर लो इधर पार्टनर्स कैपिटल 286,400. क्या है? This is 35,440 and 7,0880 total 320 और बचा कुछ इधर ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर एंड लोन है 50 और कुछ Z's executors लोन 110080 और इधर है लोन बैंक लोन. दिस इज 50 और कुछ टैली बैंक रह गया 20,000 बाय बैलेंस शीट बैंक रह गया 20. दिस इज बैंक 20,000 and tallies on 286,400. check कर 286,400 check. मेन चीज इसमें कार थी. कार ने कैसा घुमा समझा? कार का पार्ट समझ में आया आपको? कार का कैसे करने का? हेलो. लास्ट ईयर जो भी रेक्टिफिकेशन था वो खत्म करो फिर करंट ईयर. लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन खत्म फिर करंट ईयर का. करंट ईयर में खाली ध्यान रखना है और 9 महीने से क्या किया हमने उसको डेप्रिशिएट किया. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. बोलो. उधर मैंने डायरेक्ट कार्ड लिखा 27,200 चलेगा रिवाइज. हाँ तीनों का नेट एंट्री मारे बाय का. बोलो. एग्जाम में वो जो टोटल्स है वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा? टोटल्स चलता है. बैलेंसेस वगैरह लिखोगे. टोटल्स हुआ, डेबिट्स हुआ, क्रेडिट्स हुआ वो चलता है, सेकेंडरी है. बैलेंसेस बराबर लिखना, फुल फॉर्म्स यूज करना एंड हेडिंग्स चाहिए अकाउंट की. पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट पर्टिकुलर अगर सेकेंडरी है लास्ट में टाइम मिले तो लिख देना. बैलेंस शीट वो सब लिखना है. हाँ हाँ यूज फुल फॉर्म. हाँ बैंक नहीं बनाया तो चलेगा. बैंक नहीं बनाया तो चलेगा. दैट्स ओके. दिया है ना उसमें लोन. नहीं है नहीं दिया तो फिर बैंक देख लो ना.
देना था कितना 1,10,000, इधर 20 ही है तो लोन बताया था ना. You do not have sufficient balance, put it under loan. I thought दिया नहीं है तो फिर बैंक बैलेंस के साथ कंपेयर कर लेने का है तो पे ऑफ. हाँ सॉरी, एक मिनट डेथ कर मैं भी बात. रिटायरमेंट में आपको देखना है बैंक बैलेंस इनफ है कि नहीं, वरना लोन. ओके, रिटायरमेंट में. डेथ में तो देखना ही नहीं है. हाँ, डेथ में ऑलवेज एग्जीक्यूट. डेथ में अगर सी वेयर देयर इज अ विल देयर आर 200 रिलेटिव्स, तो याद रखने का डेथ में इमीडिएटली पे ऑफ करने का नहीं. क्वेश्चन में दिया है ना तो ही पे करने का. सुना क्या बोला? एक मिनट. डेथ में इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली देन पे ऑफ, अदरवाइज नेवर पे ऑफ. इट गोज टू वेयर? एग्जीक्यूटर्स लोन या लीगल हेयर्स लोन. रिटायरमेंट में यू हैव टू चॉइसेस, लंप सम एंड इंस्टॉलमेंट. लंप सम एंड इंस्टॉलमेंट. इफ इट इज ठीक है बेटा, अच्छी लंप सम एंड इंस्टॉलमेंट. अभी रिटायरमेंट में अगर इनफ पैसा है तो पे ऑफ, नहीं है तो लोन. ओके, डेथ में तो ऑलवेज इट इज लोन. एग्जीक्यूटर्स कर लो, फिनिश इट ऑफ. हाँ, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का 9 महीने का जो प्रॉफिट है दैट इज बेस्ड ऑन लास्ट 3 इयर्स. प्रोपोर्शनली बिकॉज 9 मंथ्स का ही ले, फुल ईयर का नहीं ले. वी ऑलवेज डू दैट ओनली, नथिंग डिफरेंट. चलो डन. चलो हो गया. डन डन. Next sum. See. Okay. Now, next one is
This is sum number 7. Sum number 7. See, Peter, Paul and Prince were partners sharing profit. This is similar to the sum we did in last class. A slight extension of that. Remember that sum we did in the last class of ABC? C का करंट और कैपिटल बनाया था, याद है? खाली करंट और कैपिटल, ILP वाला सम था, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी वाला, वैसा वाला है. एकदम ध्यान से देखना, स्टार मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट सम. पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं. पीटर, पॉल एंड प्रिंस were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of the partner, he or his legal representatives would be paid the following. Number 1, the balance in the capital account हम देते ही हैं. Number 2, his share of goodwill of the firm valued at 2 years purchase of the normal average profits after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement or death. तो कितने साल का एवरेज लेना है आपको? 3 साल. और कौन से प्रॉफिट्स लेने हैं? आफ्टर. हम लोग वही लेते हैं आफ्टर वाले. 3 सम से वही करते आ रहे हैं, इंटरेस्ट माइनस करना है, माइनस करना है. Third point, his share of profits from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death, which shall be taken on proportionate basis of profits of the previous year, has increased by 25%. तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? पॉइंट नंबर 3 में शेयर ऑफ प्रॉफिट. नॉर्मली शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या दिया रहता है? 2 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज, लास्ट ईयर का प्रॉफिट. इधर थोड़ा सा अलग दिया है. क्या दिया है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसको 25% से बढ़ा, उतना ये साल का प्रॉफिट है, उसमें उसको शेयर दे देना. Interest on fixed capital at the rate of 10%, though payable to all the partners, will not be payable in the year of death or retirement. Injustice. Normally तो पूरा साल सबको इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन जिस साल मरे उस साल नहीं मिलेगा. उस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. ओके, नॉर्मल ईयर्स में मिलेगा, लेकिन ईयर ऑफ डेथ में मिलने वाला नहीं है, ऐसा बोला गया है. Interest on fixed capital at 10%, though payable to the partners, will not be payable in the year of death or retirement. तो जो मरा उसको नहीं मिलेगा. Okay. All the assets are to be revalued on the date of retirement or death, and the profit or loss shall be debited or credited to capital accounts of the partners in profit sharing ratio. Underline the word capital account. Capital account of the partners in the profit sharing ratio. Peter died on 30th September 2016. Balance sheet आपका I think बाद में आएगा आगे. Peter died on 30th September 2016. The books of accounts are closed on calendar year 1st Jan to 31st December. तो last year कब close हुआ था? 31st December. And he died on 30th September. So can I say after 9 months? Yes. Yeah. The balance in the fixed capital accounts as on 31st, balance in the fixed capital accounts as on 1st January 2016, where Peter 10, Paul 5, Prince 5. That is the capital balance. The balance in the current account as on 1st January, Peter 20, Paul 10, Prince 7. These are the balances in current account. Dono clear? Drawings of Peter till 30th September were 10,000. Drawings भी दे दिया है. The profits of the firm before charging interest on capital for the calendar years 13, 14 and 15. अपने को वैसे भी 13, 14, 15 ही चाहिए, क्योंकि गया है वो 16 में. Preceding the year of death ही चाहिए. Where 1 lakh, 120 and 150 respect. But कौन से profits हैं ये? Before interest on capital. अपने को कौन सा चाहिए? After interest on capital. The profits included the following abnormal items of credit. 13 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट था, इंश्योरेंस क्लेम था. 14 में से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट था. 15 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इंश्योरेंस क्लेम था, दोनों. Now why are these abnormal items specified? अपने को कौन से प्रॉफिट चाहिए गुडविल के लिए? फ्यूचर मेंटेनेबल. मतलब abnormal आइटम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. तो हमें abnormal आइटम्स क्या करने पड़ेंगे? एडजस्ट करने पड़ेंगे. अगर abnormal गेन है तो क्या करना है? माइनस. abnormal लॉसेस है तो क्या करना है? ऐड. बराबर. बट दैट इज ओनली फॉर गुडविल. While doing share of profit,
Are we concerned with the abnormal item? Profit is profit, share of profit is share of profit. उससे abnormal नॉर्मल आइटम का कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ गुडविल के लिए अपने को कौन सा प्रॉफिट चाहिए? कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, जो आने वाले सालों में आप कमा सकते हो. सामने वाला उसके बेसिस पे आपको गुडविल का पैसा देगा, क्योंकि आगे जाके वो प्रॉफिट ना हुए तो नुकसान है उसका, या ज्यादा हुए तो आपका नुकसान है. सिर्फ गुडविल के लिए वी नीड कंसिस्टेंट. अब नॉर्मल आइटम्स हटानी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हटाने की जरूरत नहीं. रिमेंबर दैट. ओके, इसलिए इस सब में आपको एवरेज भी नहीं दिया है. शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोला है कि पिछले साल का लो, उससे 25% बढ़ा दो. ओके, अब नॉर्मल आइटम्स नहीं लेने हैं फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओनली फॉर गुडविल. The firm has taken out a joint life policy of 1 lakh. What happens in case of joint life policy? Whenever anyone dies, you get what? Claim. And entire claim goes to who? All. Every money goes to all the partners. Besides, the partners had severally insured their life for 50,000 each. Individual life policy भी है. 50,000 की इंडिविजुअल पॉलिसी भी है, और 1 लाख की जॉइंट पॉलिसी है. वो तो 1 लाख ही मिलेगा, और 50,000 में एक का मिलेगा क्लेम और बाकी 2 को मिलेगा सरेंडर वैल्यू. तो वही दिया है आगे. द प्रीमियम इन रिस्पेक्ट thereof being charged to P&L account. What do you mean by premium charged to P&L? एक्सपेंस मेथड है. मतलब इन शॉर्ट, जो आया वो मलाई, जो आया वो इनकम. बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल. किसको जाएगा? तीनों. याद आया? कितना मिलेगा उसके लिए सरेंडर वैल्यू चाहिए अपने को, तो आगे कहीं दिया होगा. द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज आर 30% ऑफ द फेस वैल्यू. तो मतलब जो 50,000 वाली पॉलिसी है, उसमें एक का तो जो गया वो पीटर का तो 50 ही मिलेगा, बाकी 2 का कितना मिलेगा? 15%. 30% ऑफ 50,000. लास्ट समय बोला 20% था, इस समय 30%. याद आ रहा है? वो 10 की थी ना, एक का 10 मिला, बाकी 2 का 2,000 मिला. 20%, 14 मिला था लास्ट समय. फिर 17,000 का हाफ लेयर था. यहाँ पर 50 है, जो गया उसका 50, बाकी 2 का 15, मतलब 50 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 1 लाख, तो टोटल मिलेगा 1,80,000. वो फुल 180 किसको जाएगा? तीनों. इन द प्रॉफिट शेयर गाड़ी. ऐसा है पॉलिसी का पार्ट. ऑन 30th June 2016, that is the current year of death, the firm received a notice from the insurance company that insurance premium in respect of the policy has been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2016, and the firm had to pay it immediately. ये क्या है आपका? प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने अंडर चार्ज किया था. तो इज दिस रीवैल्यूएशन और रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन जाएगा इसी में, बट है रेक्टिफिकेशन. क्या है? आपने प्रीमियम क्या किया था? अंडर चार्ज किया था, 6,000 कम दिया था, तो अभी आपको भरना पड़ा. तो फायदा हुआ कि नुकसान? लाइक रिवैल, बट व्हाई रेक्टिफिकेशन मैटर्स आई टेल यू. The revaluation of the assets indicate an upward revision in the value of assets to an extent of 20,000. What is this? This is reval. What was that 6,000? That was not reval, that was rectification. Slight difference है, समझ में आएगा आपको जब profits करेंगे. Prepare an account showing the amount due to Peter's legal representatives as on 30th September along with necessary workings. इसमें सब कुछ है. इसमें ISB भी है, JLB भी है, रेक्टिफिकेशन भी है, रिवैल भी है, करंट भी है, कैपिटल भी है, गुडविल भी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है. एवरीथिंग इज देयर. फुल फ्लेजेड नहीं है. इसमें बनाने का खाली उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही देना है, उतना दया माया दिखा है. तो आपको फुल फ्लेजेड नहीं है, खाली पीटर्स रिप्रेजेंटेटिव को कितना देना है. तो बेसिकली पीटर्स करंट and Peter's capital, two accounts, Peter's current and Peter's capital. Okay, since you are having current, all the changes will be done in current. बराबर है? So this is Peter's current account and this is Peter's capital account. कुछ याद आया? लास्ट लेक्चर सिमिलर सम किया था. पीटर्स करंट, पीटर्स कैपिटल, अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सिंस यू आर हैविंग करंट, ऑल दिस इन व्हाट? करंट. पूरा
ये आएगा तो 10 से 15 मार्क के लिए आएगा। लेना भाई लेके बैठा है हाँ 10 से 15 आएगा तो 10 to 15 मॉड्यूल सम ये सम नहीं आया है पीटर पॉल प्रिंस नहीं आया मोस्टली तो नहीं आया नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइंग स्पीड करंट में है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है बस लैंग्वेज में। सब में सारा डिटेल दिया है, इट्स ऑल इन द पॉइंट्स, यू हैव टू रीड इट। देखो वन बाय वन विल क्रैक ऑल द आइटम्स, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सम, लेंथी है। देखो सबसे पहला स्टेप से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस। इसमें कुछ प्री डेथ वगैरह नहीं है, वो जो रेक्टिफिकेशन है वो भी वही साल का है, 2016 में ही हो रहा है। दिख रहा है? टाइमलाइन समझ में आई? 13, 14, 15 3 साल पिछले थे। 13, 14, 15 3 पिछले साल थे और 2016 करंट ईयर है। जैन टू सितंबर का हम लोग कर रहे हैं। हेलो, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप बैलेंस। In year 2015 the form has to be rectification 15 की हमने 16 में किया ना रेक्टिफिकेशन, पता था 16 में ही चला है ना। अभी इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला बैलेंस करंट का दिया है, पीटर का ही बना रहे हैं। मिला 20,000 है और पार्टनर्स कैपिटल में कितना बैलेंस है? 10,000 है। मिला? ओके, कैपिटल 10 करंट 20 हो गया। अब देखो कुछ रिजर्व का इंफॉर्मेशन था? नहीं था, वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। थर्ड स्टेप कैपिटल तो होता नहीं, एडिशनल। फोर्थ स्टेप इज गुडविल। चेक, डू यू हैव एनी गुडविल इन द बैलेंस शीट? डू यू हैव एनी गुडविल इन द बैलेंस शीट जो राइट ऑफ करनी है? नहीं है, वो तो दिया ही नहीं है डिटेल में। तो नई गुडविल के पीछे जाते हैं हम लोग। नई गुडविल का है ना, थोड़ा सा आपका कॉलम्स आपको बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नीटली करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। ये ईयर्स हुए, ओके। ये प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट, ओके। फिर वन बाय वन मेंशन द एडजस्टमेंट्स। द फर्स्ट वन इज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम इधर है ना, मैं एवरेज लेके सीधा नहीं उड़ा सकता। जैसे मैंने एक समय किया था, एवरेज लिया था, फिर लास्ट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस कर दिया था। इधर मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर साल का लोचा है। हर साल में कुछ क्लेम है, कुछ प्रॉफिट है, दिख रहा है आपको? तो आई हैव टू डू इट इंडिविजुअली। आई हैव टू डू इट इंडिविजुअली। डोंट डू इट लाइक दैट, डू इट लाइक दिस। ईयर्स, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम है। फिर लिखना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक चीज आएगी इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी अभी आपने किया कार वाला, याद है? 32,000 प्रॉफिट इफेक्ट हुए थे कि नहीं हुए थे? तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम वाला भी क्या सीन है बेटा? रिवैल है कि रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन है, तो आपके प्रॉफिट इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कौन से साल के इफेक्ट होंगे? 2015 के होंगे। सही बात है, कर रहे हो 2016 में, लेकिन प्रॉफिट्स इफेक्ट होंगे 2015 के। सेम कंसेप्ट है। 2016 में आप 15 का रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। समझ में आया? तो दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सब करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ओके। तो कॉलम 1 2 3 4 5 6, ओके। है सिंपल सा है, खाली मैंने प्रेजेंट ऐसे किया इसलिए बड़ा दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है। देखो हाँ, तो बाकी सब खा जाएगा। ये वर्किंग का मार्क्स है बेटा। अभी ईयर्स करने हैं आपको। कौन से ईयर्स है? 2013, 2014, 2015। क्या थे प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं? 1 लाख
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,00,000 था, 1,20,000 था और 1,50,000। 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000 मिला। अब देखो ध्यान से, इंश्योरेंस क्लेम, हाँ क्या है इंश्योरेंस क्लेम? अब नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल गेन है? तो ये प्रॉफिट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो हटाओ। तो 2013 में 3,000 था, हटाओ। 2014 में था ही नहीं, 2015 में 12,000 था, हटाओ। अब नॉर्मल गेन है तो हटाना है, अब नॉर्मल लॉस है तो ऐड बैक। आई एम ट्राइंग टू गेट द फिल्टर्ड प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, राइट? देन प्रॉफिट ऑन एसेट, हटाना है कि रहने देना है कि बढ़ाना है? हटाना है। लॉसेस होते तो मैं ऐड बैक करता, प्रॉफिट है तो मैं हटाऊंगा। 5 यहाँ से हटाऊंगा, 7 यहाँ से हटाऊंगा और 10 यहाँ से। ये हटाने का लॉजिक क्या है? कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए ना। अचीजा वाला हर साल 10 लाख कमा रहा है और एक साल सडनली कुछ पार्टी वार्टी हो गई, फाल्गुनी पार्टी आ गई, उसने 50 लाख कमा लिए। तो गुडविल के वक्त विल यू कंसिडर 50 लाख एज अ प्रॉफिट और 10 लाख? ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है? 10। और 50 के हिसाब से गुडविल करेगा तो उसको तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन सामने वाले का नुकसान होगा कि वो हर साल होने वाला नहीं है। फ्यूचर मेंटेनेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए आपको गुडविल के लिए, समझ में आया? अबनॉर्मलिटी सब हटा देंगे। तो पास्ट का अबनॉर्मल गेन हटाओ, पास्ट का अबनॉर्मल लॉस ऐड बैक करो, वो हर साल होगा नहीं। और क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, आई थिंक 10%, तो कितना होता है? 2,000 एवरी ईयर। आई विल सबट्रैक्ट, यस, हर साल, क्योंकि व्हाई एम आई सबट्रैक्टिंग? दीस आर प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट। सुना? अगर प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट होता तो मैं खाली ये एडजस्टमेंट करता। प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट है तो मेरे को इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, समझ में आया? और एक चीज करनी पड़ेगी, वो इंश्योरेंस। दैट वाज रेक्टिफिकेशन और रिवैल। रिवैल अलग से एसेट्स का दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज, अंडर चार्ज मतलब बढ़ाना है, एक्सपेंस था आपका, एक्सपेंस बढ़ा मतलब प्रॉफिट्स। कौन सा? तीनों? करंट ईयर का कितना? 6,000। नाउ यू गेट द फाइनल अमाउंट। दिस इज आई थिंक 90,000, दिस इज 1,11,000, 1,20,000। Am I right? चेक कर लो। 2,21,000 चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस क्यों किया? एक्सपेंस, आई डोंट नो, तुमने बोला, मैंने लिखा। 321 आ रहा है, देख लो। अभी इसमें ना एक स्टेप और आगे भी जा सकते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। एनीवन? नो। असेंडिंग ऑर्डर में है प्रॉफिट। वेट्स भी डाल सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। टू गेट अ बेटर आंसर ऑफ एवरेज यू कैन हैव ऑलरेडी। नहीं करेगा तो चलेगा, सिंपल एवरेज से किया तो भी चलेगा। ऐसा हो तो वो एग्जामिनर देख के आंसू आ जाएगा। इतने करने के बाद अगर आप वेट्स असाइन करते हो तो ओके, क्योंकि प्रॉफिट्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो इट्स बेटर टू असाइन इट, बट इट्स ओके। क्वेश्चन में दिया तो करने का, वरना नहीं किया तो चलता है। अभी एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट नहीं रहने तो आंख में से आंसू निकल जाएगा। दिस इज 1,07,000, एम आई राइट? 3 साल का एवरेज ले लो, 1,07,000। अब ये एकदम फाइनल प्रॉफिट है, इसमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, तो हमने सब कुछ ले लिया। हमने अबनॉर्मल आइटम ले लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया, और वो रेक्टिफिकेशन प्रीमियम था वो भी ले लिया। ओके, समझा? मेन वो क्लिक होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन का 6,000 क्लिक हुआ, कार वाला जैसे किया था सेम कंसेप्ट था। ओके, अंडर चार्ज। तो दैट्स अबाउट इट। गुडविल इज 2 years परचेज, कितना? 2 years. So my total goodwill is how much? 2 into 1,07,000
which is 2,14,000. 2,14,000 है. न्यू रेशियो आई थिंक नहीं दिया है. OR क्या है आपका? 211 है. पहला ही गया ना पीटर, तो बचा हुआ 11. That's GR, that's NR. Straight share in GR. Equally कर सकते हो. Share ले लो. Peter's share of goodwill. Peter's share of goodwill is 2,14,000 का 2/4 1,07,000. और ये 1,07,000 1:1 में पॉल और प्रिंस को जाएगा. आई मीन पॉल और प्रिंस देंगे, सॉरी. 53,500 and 53,500. अब याद होगी तो मैंने एक चीज बोली थी, गुडविल शुड बी डन इन कैपिटल, नॉट इन करंट. तो कैपिटल में आएगा बाय पीटर कैप, नहीं बाय पॉल कैप एंड बाय प्रिंस कैप. बाय पॉल बाय प्रिंस. गॉट इट? Goodwill should be done in capital. 12th standard it's fine, you can do it in current, but actually goodwill is always a part of capital. Big amount, big amount. So it is Peter. It's Paul Prince to Peter. Got the entry? Yes. Paul Prince to Peter. Peter में by Paul by Prince 53,500 and 53,500. Okay. वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए. सर शेयर ऑफ प्रॉफिट 1:20 का है ना, वो अलग है. रुको, हाई मत कर, सबर कर. वो जो 25% इंक्रीमेंट है ना, वो गुडविल के लिए नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बेटा. वो करते हैं, अलग गेम है वहां पे. रुकिए ना बेटा जरा, जो मैं करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दो. आगे की गाड़ी पकड़नी. अभी सुनो, ये समझ में आया? गुडविल कंफर्टेबल है सबको? अभी रिवैल. ओके, लेट्स गो टू रिवैल. चलो रिवैल एक छोटा सा बना लो. रिवैल वर्किंग नोट रिवैल का कर लेते हैं. जो भी है 1 2 3 नंबर दे देना. रिवैल में ना 2 चीजें करनी है अपने को. क्या यू नो? एक वो इंश्योरेंस है, अंडर चार्ज किया था, और दूसरा वो रिवैल्यूएशन है. बट आई विल एडवाइस दोनों अलग अलग करो. व्हाई? वो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इट रिवैल और रेक्टिफिकेशन? बट देन अगेन सिंस यू आर रेक्टिफाइंग इन द नेक्स्ट ईयर, देखो एंट्री क्या है? इंश्योरेंस अंडर चार्ज है, तो इंश्योरेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा मतलब लॉस. बराबर है? तो इंश्योरेंस टू कैश, बट यू कांट यूज इंश्योरेंस अकाउंट बिकॉज यू आर रेक्टिफाइंग इन द नेक्स्ट ईयर. सो रिवैल P&L एडजस्टमेंट टू कैश. याद है? तो P&L एडजस्टमेंट में, दैट इज रिवैल में टू कैश, दिस इज योर इंश्योरेंस प्रीमियम. दिस इज इंश्योरेंस 6,000. This is which part? This is not reval, this is rectification. Okay? रेक्टिफिकेशन हुआ. 6,000 का आपका इंश्योरेंस अंडर चार्ज था, उसको रेक्टिफाई किया आपने. और एक है रिवैल, एसेट्स अपवर्ड रिवैल्यू है 20,000 से, दिख रहा है? वो आपका गेन है. बट दोनों साथ में मत करो. व्हाई? प्रॉफिट और लॉस विल बी गोइंग टू व्हिच अकाउंट? करंट और कैपिटल? But there is a statement, if you have read it properly, point number 5, all the assets are to be revalued on the date of retirement or death, and the profit or loss to be debited or credited to capital account. मतलब revaluation का profit है ना, करंट में नहीं डालना है, कैपिटल में डालना है. क्यों सर? दिया है तो अपना दिमाग लगाओ मत. रिवैल का प्रॉफिट कैपिटल में डालना है, लेकिन नॉर्मली रिवैल का प्रॉफिट किधर जाता है? क्योंकि इसका रेक्टिफिकेशन का कुछ नहीं बोला, तो रेक्टिफिकेशन विल गो टू करंट and that 20,000 का प्रॉफिट will go to capital. So show it separate. जैसे मैंने लास्ट सम में भी जानबूझ के ऐसे ही किया इसके लिए. वो कार वाला था ना, रेक्टिफिकेशन अलग लिया और फिर रिवैल्यूएशन लिया. उसमें तो कंडीशन नहीं थी, बट अलग अलग किया तो बेटर ही है, आपको इजी पड़ेगा. रेक्टिफिकेशन अलग रखो, रिवैल अलग रखो. तो ये 6,000 बंद करके तुरंत ट्रांसफर कर दो. ये 6,000 किधर डालने? ये करंट में जाएंगे. ये रिवैल नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन है. सो बाय पार्टनर कैपिटल तीनों को ही जाएंगे. पीटर पॉल प्रिंस, पीटर पॉल प्रिंस.
6000 है तो क्या आ रहा है डिवीजन आपका? 3 to 1 नहीं, 3000, 1500, 1500 बराबर. दिस विल गो टू करंट, माय बाय. दिस विल गो टू करंट बाय पार्टनर करंट. ओके, ये लॉस है. तो बाय पार्टनर करंट का करंट में आएगा टू रिवैल या फिर टू पीएनएल एडजस्टमेंट. पीटर भैया का हिस्सा कितना है इसमें? 3000. ये क्या किया मैंने? दिस इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस अंडर चार्ज था वो मैंने वापस बढ़ा दिया. ये कुछ भी और रेक्टिफिकेशन रहता सब मसाला इधर ही आता और सबका सब करंट में ही जाता. इवन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वुड हैव गॉन टू करंट इफ नॉट स्पेसिफाइड क्लियरली. यहाँ पे बोल रहा है इसलिए हम लोग कैपिटल में डालेंगे. ओके, अब वो रिवैल खत्म करते हैं. ये रेक्टिफिकेशन हो गया. अब रिवैल खत्म करते हैं. तो रिवैल में क्या एसेट्स आर इंक्रीज और डिक्रीज. तो फिक्स्ड एसेट बढ़ गया कितने से? 20,000 से. एक ही था आइटम, खत्म. ये आपका रिवैल भी हो गया. ये किसको जाएगा लेकिन? कैपिटल. क्यों सर, क्यों कैपिटल, क्यों करंट नहीं? बेटा दिया है, तोड़ रहा है बेंच. इधर ध्यान दो. कैपिटल कितना आपका? 20,000. डिवीजन पीटर पॉल प्रिंस करो लो डिवाइड. N55 211 है ना? ये जाएगा कैपिटल में. समझ में आया फर्क? ओके, क्योंकि दे हैड स्पेसिफाइड मैंने ऊपर वाला करंट नीचे कैपिटल. वरना फिर आप दोनों साथ में लेके एक साथ भी कर सकते हो करंट में, तो भी चले. एक ही करंट है तो वांधा नहीं है. पिछले समय भी मैंने आपको बोला रेक्टिफिकेशन और पूरा मसाला साथ में ले लो, चलेगा. ओके, कंडीशन है इसके लिए रिवाइल अलग और रेक्टिफिकेशन अलग. गाड़ी. ओके, सो दैट डन. रेक्टिफिकेशन रिवाइल हो गया. अब एक्स्ट्रा आइटम्स पे जाते हैं. एक्स्ट्रा आइटम्स में you have to take first joint life policy also and then share of profit also. First let us take joint life policy and ILP. वो easy है थोड़ा, पहले खत्म कर लेते हैं फिर share of profit पे जाते हैं. Working on 3 life policy. सीधा life policy लिख लो. ओके, देखना ध्यान से. joint life policy, how much would they receive? बोलो. जॉइंट लाइफ पॉलिसी हाउ मच आर दे गोइंग टू रिसीव? 1 लाख. ये तो फिक्स हो गया. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड इज 1 लाख. कोई भी मरे 1 लाख ही मिलने वाला है. सॉर्टेड है. लफड़ा क्या है? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी. इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी कल भी हमने एक नोट बनाई थी. पीटर पॉल प्रिंस तीनों की है अलग अलग पॉलिसी. 50,000, 50,000, 50,000. दिस इज द पॉलिसी अमाउंट. बराबर है? करेक्ट. व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू इज कितना? आई थिंक 20% है ना? 30%. सरेंडर वैल्यू इज 30%. पीटर को तो क्लेम मिलेगा ना, इसका क्लेम मिलेगा, इसका सरेंडर वैल्यू और इसका सरेंडर वैल्यू. हाउ मच इज सरेंडर वैल्यू? आई थिंक 30% और 20%. 30%. सो अमाउंट रिसीव इसमें कितना रहेगा? फुल 50. इसमें रहेगा 15,000. इसमें रहेगा 15,000. एम आई राइट? तो टोटल मिलना चाहिए 80,000. एंड दिस प्लस दिस फाइनल अमाउंट रिसीव. टोटल अमाउंट रिसीव. व्हाट इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड? इट इज JLP प्लस ILP. JLP प्लस ILP मिला के इनको कितना आएगा? 1,80,000. बराबर? देख लो. जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख था. इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी 50, 50, 50. Peter will get claim, मतलब Peter नहीं, business will get claim, business will get SP, business will get SP. 30%, which is 50,000 plus 15 plus 15, 80 और ये 1 लाख टोटल हो गया आपका 1,80,000. बराबर?
ये समझ में आया? जो भी मलाई मसाला आएगा सबको जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रीमियम वाज चार्ज टू पीएनएल, मतलब प्रीमियम वाज व्हाट, एक्सपेंस और एसेट? एक्सपेंस मेथड, मतलब एंटायर अमाउंट ऑफ क्लेम बिकम्स द प्रॉफिट, राइट? व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट? बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू रिवेल के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला था डेथ में बेटर है कि कैपिटल के थ्रू हो। याद आया? करंट ना, So bank to policy, policy to current. Obviously current. कुछ नहीं दिया तो current. So bank to policy, policy to current. ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ खाली एंट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए। बैंक टू पॉलिसी कितना? 180 एंड पॉलिसी टू करंट, किसका करंट? तीनों का, पीटर, पॉल, प्रिंस करंट। 180 in which ratio? 2:1, which is I think 90 45. Is that right? So how much will Peter get out of it? 90. तो इधर कैपिटल में नहीं, करंट बाय लाइफ पॉलिसी अकाउंट। JLP ILP मगजमारी नहीं, सीधा लाइफ पॉलिसी। एक एंट्री में पूरा खत्म। अलग दिखा है तो बाय JLP बाय ILP करना पड़ेगा, बट साथ में कर सकते। पॉलिसी का पूरा एंट्री एक साथ कर सकते। तो कॉमन अकाउंट यू कैन यूज फॉर बोथ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए भी लाइफ पॉलिसी और ILP के लिए भी लाइफ पॉलिसी। पॉलिसी का फंडा सिंपल रखो, जो पैसा आया पूरा एक साथ ट्रांसफर, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल। नहीं, आई जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल दिखाने की जरूरत नहीं है। करंट, गो टू करंट। हाउ डिड पीटर गेट 90? डिड यू अंडरस्टैंड? टोटल कितना मिला था? 180. What if they would have followed asset method and the asset value was 80,000? Asset method and asset value was 80. तो 80 का कितना मिला? 180. प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। तो जाएगा कितना? 1 लाख का 2/4, 50। समझा? बैंक टू पॉलिसी वुड बी 180, बट पॉलिसी टू करंट वुड बी 1। अगर एसेट मेथड होता, इधर कोई एसेट मेथड जा प्रॉफिट, इधर पूरा, क्योंकि इधर पूरा ही प्रॉफिट है अपना। एक्सपेंस मेथड था तो पूरा प्रॉफिट। व्हाट इफ एसेट मेथड में पॉलिसी 50,000 की दिख रही होती बुक्स में और आता 180, तो 130 का प्रॉफिट। तो बैंक टू पॉलिसी 180 एंड पॉलिसी टू करंट 130, और वो डिवीजन जाता है इसका 65, इसको 65। समझा? करंट एसेट्स कैपिटल में एडजस्ट हो रहा है, ऐसा लिखा है। रीवैल्यूएशन, तो वो एसेट मेथड होता तो ऐसा होता। एसेट मेथड ऑफ पॉलिसी होता है। एसेट रीवैल्यू नहीं किया है, बेची दी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट विल गो टू कैपिटल, वो जाएगा करंट, पॉलिसी विल गो टू करंट। ओके, रीवैल्यू किया तो देन और क्या? लास्ट वन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, द लास्ट पार्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या बोला? वही बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अपने को ईयर ऑफ डेथ में, ना बोला है। इनजस्टिस है, ऊपर क्लॉज है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द ईयर ऑफ डेथ, दिख रहा है? ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, मुझे बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? रीड ऑल ऑफ यू, रीड पॉइंट नंबर सी में दिया 3 वही सी। His share of profit from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death shall be taken on the proportionate. What is proportionate basis? 9 महीना, 12 महीने का देने की जरूरत नहीं। On proportionate basis for the of profits of previous year has increased by 25%. तो पहले अपने को चाहिए previous year के profits कितने, right? उसको 25% से बढ़ाओ तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट्स मिल गए, उसमें उसका शेयर, उसमें मत, काम हो गया। देखने में तो बहुत आसान है। सो पिछले साल के प्रॉफिट मतलब 2015 के चाहिए, गम्मत है। 1,50,000 इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अभी मैं गुडविल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट कर रहा हूँ। सो एम आई सपोज टू कंसिडर दिस क्लेम? कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम आई सपोज टू कंसिडर दिस प्रॉफिट? वो खाली प्रॉफिट चाहिए ये साल का। गुडविल के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए थे, इसके लिए ये सब। Am I supposed to consider interest in capital? Yes. Am I? Yes.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस वो अबनॉर्मल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल एक्सपेंस है ना. ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस. Am I supposed to consider this 6,000? Yes. Okay. So, ध्यान से बोलते. Okay. पहला profits for 2015 before interest on capital before adjustment. Profit of 2015 before adjustment. Before adjustment last year बेटा एक और. This is 1,50,000. आप थोड़ा शायद लेट होगा but please एक छोटा ही सब है उसके बाद इसके बाद एक उसमें खाली गुडविल ही कैलकुलेट करना वेरी स्मॉल. 10 minutes submit. चलो 1,50,000 was the profit. All of you agree? Yes sir. Quiet now. रास्ता आपको जल्दी आना चाहिए. अभी क्या है? आज छुट्टी सर. लेक्चर के लिए आया ना 7:15 खत्म करना. सर आप जल्दी चालू करो ना. इधर ध्यान दो. 1,50,000 ध्यान दो यार. चलो 1,50,000 is the profit before adjustment. सबसे पहले अरे सर चुप बैठो. पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत करो सब. ओके. सब्ट्रैक्ट योर इंश्योर. रेक्टिफिकेशन करना है जो पिछले साल में हो गया था. लेस इंश्योरेंस प्रीमियम. That was rectification. So you change the profit. You arrive at 1,44,000. These are profits after adjustment. Profit after adjustment. Profits before adjustment था 1.5 लाख. 6,000 उड़ाया इंश्योरेंस प्रीमियम का. दिख रहा है ना. Less insurance premium. So you get profits after adjustment 1,44,000. अब ऑन द फेस ऑफ इट क्या लगता है अपने को कि भाई 1,44,000 में से 2,000 इंटरेस्ट हटाओ, 25% से बढ़ाओ, हो गया काम. क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि इस साल डेट पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है. और अगर मैं 2,000 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मतलब मैं डेट का भी इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूँ. अपने को मैंने बोला था याद है. आई वॉन्ट विच प्रॉफिट दिस ईयर्स प्रॉफिट. This year's profit में it is better to take all incomes of this year and all expenses of this year. But unfortunately मेरे पास वो डेटा नहीं है. तो मैं फिलहाल इसकी मदद से काम चला रहा हूँ. ओके. 1,44,000 की मदद से काम चला रहा हूँ. बट एक चीज है जो मेरे पास करंट ईयर की है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई हैव दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथ मी. तो वो तो मैं लूँ ये साल का. वो क्यों मैं पिछले साल का ले रहा हूं. वो पिछले साल की लेने की जरूरत नहीं. अच्छा, तो ऐसा लगता है कि यार डेड को नहीं है तो ठीक है ना. पीटर का हटा देते हैं इंटरेस्ट 1,000. पीटर का 1,000 है ना. 2,000 में से कैपिटल कितना दिया है? 1 लाख नहीं. 20 10 10 नहीं 10 5 आया कैपिटल्स. तो पीटर का कितना हुआ? 10% 1,000 रुपया. 1,000 हटा दो तो 1,000 माइनस करते हैं. बराबर है. और फिर 25% से बढ़ाते हैं. वो सही होगा कि पहले 25% से बढ़ाऊं फिर 1,000 माइनस. देखो करंट ईयर में पीटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है. बराबर. किसको देना है? फॉलोअर प्रिंसिपल. वैसे तो हर साल 2,000 माइनस किया, लेकिन इस साल 2,000 करना है कि 1,000 क्योंकि करंट ईयर में जो डेट पार्टनर है उसको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है. तो 1 लाख. माय क्वेश्चन इज 1,44,000 में से 1,000 माइनस करूं फिर 25% ऐड करूं कि पहले 25% ऐड करूं फिर 1,000? ये लास्ट ईयर का 2,000 नहीं करना है माइनस. वही तो बात चल रही है. आपको कौन से प्रॉफिट चाहिए करंट ईयर के? करंट ईयर का प्रॉफिट क्या? करंट ईयर का इनकम माइनस करंट ईयर का एक्सपेंस. तो करंट ईयर के एक्सपेंस में आई कांट सब्ट्रैक्ट 2,000 बस. करंट ईयर का एक्सपेंस 2,000 है ही नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,000.
मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट के लिए 1000 ही माइनस करना है, बट पहले 1000 करके फिर 25% इंक्रीज करना है, पहले 25% फिर 1000, ये सेम ही होगा दोनों। देखो अगर आप पहले माइनस करते हो और फिर 25% बढ़ाते हो तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन दैट सिचुएशन आप क्या सोच रहे हो कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो भी 25% से बढ़ गया। अगर मैंने 1,44,000 किया, एक और कैलसी 1,44,000 किया, -1 करो 143 प्लस 25% करो, कितना आता है? 1,44,000 -1, ये तो समझा ना, ये मैंने रेक्टिफाई किया, 144 का प्रॉफिट है। व्हाई आई डिड नॉट टेक 2000 लेना है क्योंकि वो डेट को नहीं है। तो कितना होता है बाकी लोगों का इंटरेस्ट? अब 143 हुआ, 143 प्लस 25%, तो इसमें ये फिगर गलत है। क्यों गलत है? आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट 25% से बढ़ा है और इंटरेस्ट भी 25% से बढ़ा है। हाँ देखो, तो 144 का 25%, 144 प्लस 25%, 179 माइनस 1250, प्रॉफिट भी आप 25, इंटरेस्ट भी आप 25% से बढ़ा रहे हो, माइनस 1250, 1,44,000 प्लस 25%, 180। ओके, फिर आपने क्या सोचा कि इंटरेस्ट भी 25% से बढ़ गया है, तो 1250, 180 माइनस 1250 ये मिलेगा, दिख रहा है? तो क्या गलत होगा? आपने अगर पहले इंटरेस्ट माइनस किया, समझा? तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट भी 25% से बढ़ गया इस साल, बट इज दैट द सिचुएशन? इंटरेस्ट 25% से बढ़ा है क्या? नहीं, प्रॉफिट्स 25% से बढ़ने की संभावना है। इंटरेस्ट कितना रहने वाला है इस साल? 1000 ही रहने वाला है। सो व्हाट इज बेटर? व्हाट इज बेटर? व्हाट इज राइट? You are supposed to increase your profits first by 25% and then subtract 1000, because current year's expense is not 1250. Current year's expense is 1000. Interest on capital is not 2000. Interest on capital is 1000. Did you get it? ऐसा लॉजिक अगर लेके प्रॉफिट के ईयर में ही पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कभी देना है, तो उसके लिए बाद में माइनस कर देना, वो भी राइट है, वो भी चलेगा। डेथ के ईयर में उसको नहीं देना है, इसको देना है तो चलेगा। देखो कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है क्योंकि अपने को क्या करना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ाना है 25% से, तो माइनस करके बढ़ा देते हैं, वो मत करना। पहले क्या करना, 25% से बढ़ाना प्लस इंक्रीज ऑफ 25%, कितना है ये? 36 से बढ़ा तो 1,80,000 हो गया। 1,80,000 में से सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। How much interest on capital I subtract? Now come on, 2,000, 1,000, 1,250, how much? 1,000. Current year's interest on capital only Paul and Prince. Only Paul and Prince का 1,000. So final amount is 1,79,000. 1,79,000 is current year's profit. Once again, before adjustment था 1.5 लाख, इंश्योरेंस का घटाया 6, बना कितना? 144, बस हो गया लास्ट टाइम। 1,44,000 समझा? अभी 144 में से इंटरेस्ट माइनस करके फिर मत बढ़ाना 25% से, समझा? क्यों? करंट ईयर का एक्सपेंस 1000 ही है, 1250 नहीं है। अगर आप पूरा एंड में करोगे ना 25%, मतलब आप इंटरेस्ट भी 25% से बढ़ा रहे, विच इज रॉन्ग। ओके, सो दिस इज 180 माइनस करंट ईयर्स इंटरेस्ट 1000। सो फाइनल ये 179 खाली पीटर का नहीं है, इसमें क्या करना है? पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, पीटर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट टू फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। बोले तो 1,79,000 का कितना शेयर है? 2/4 फॉर 9 मंथ्स ना, 6,7,125। किधर डालो कैपिटल की करंट? बोलो बेटा, करंट 6,7,125। नाउ व्हाइल शटिंग डाउन, पहले क्या करने का? करंट बंद करने का,
अच्छा हाँ, ड्राइंग्स भी है ना, कितना है टू ड्राइंग्स? 10,000 वो तो ऐसे ही उड़ा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है ना। अभी करंट बंद होके किधर जाएगा? टू पीटर कैपिटल, कितना आ रहा है टोटल? 125 एंड डिफरेंस ये किधर जाएगा? कैपिटल में बाय पीटर करंट 164 125 एंड देन ये जाएगा पीटर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 291 125। हाँ 10 से 15 आया तो इसमें जो एरिया है ना सोचने वाले, एक गुडविल में सब करना है, रेक्टिफिकेशन भी करना है, अबनॉर्मल आइटम्स भी करना है, वो समझ आया। बट शेयर ऑफ प्रॉफिट में खाली क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। ये समझो, ये मेन था। गुडविल में सब मसाला डालने का, शेयर ऑफ प्रॉफिट में खाली रेक्टिफिकेशन। सर नेक्स्ट हम कर दीजिए। हाँ हाँ बस फर्स्ट 1 मिनट, ये डाउट बाद में पूछना है। 1 मिनट। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से दिया था या फिर आफ्टर नहीं उनपे बोलना पूछेगा उसका ये मैं मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए मैंने उसका खाली बता दिया। कोई अगर कर दिया देखिए हर साल 2000 अभी 1000 है, 1000 का तक नहीं बढ़ा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया। मॉड्यूल में वो रॉन्ग किया हुआ है। 2022 में करेक्शन आया। 2022 से पहले वो लोग ने पहले इंटरेस्ट लिया था, फिर 25 का पैसा बढ़ाया, अभी चेंज करा। मिस्टेक्स है, बहुत मिस्टेक्स। चलो लास्ट अभी मेन पॉइंट्स ऑफ दिस सम। गुडविल में सब करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में खाली रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन करंट रिवैल्यूएशन कैपिटल क्वेश्चन में दिया था। हेलो, बाकी तो जेएलपी आईएलपी वाज वेरी सिंपल, गुड, बाकी कोई था ही नहीं सिंपल। यही था मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट और लास्ट सम। हाँ ग्रुप पे डालो। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, wise, clever and dull were trading in a partnership sharing profits and losses as 4:3:3. The accounts were made up to 31st December every year. मिला? ध्यान से देखो। The partnership provided inter alia that on death of a partner, the goodwill was to be calculated at 3 years purchase of the average profits of 3 years up to the date of death. It is not preceding the year of death. Up to the मतलब जब गया ना उस दिन से 3 साल पीछे जाना। अब तक क्या हो रहा था? 2016 में गया तो 13, 14, 15 लेते थे, 17 में गया तो 14, 15, 16 लेते थे। इधर क्या करने का है? जब गया उस दिन से पीछे 3 साल जाना है। एग्जैक्ट। ओके, रीड इंग्लिश। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years purchase or the average profit of 3 years up to the date of death after deducting interest at the rate of 8% on capital employed. तो प्रॉफिट से इंटरेस्ट माइनस करना है एंड अ फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, मतलब सैलरी भी माइनस करनी। The profits are assumed to be earned evenly throughout the year. On 30th June 2016, Vice died. So 30th June को गया है वो। कब गया है? तो अपने को कौन से 3 साल के प्रॉफिट चाहिए पहले? It's not Jan to December. July to June, July to June, July to June. And it was agreed that on his death, it was to adjust the goodwill in the capital account without showing the amount of goodwill in the balance sheet. वैसे ही करते हो। It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that the fair remuneration of work done by each partner should be 15,000 per annum and that the capital employed would be 1,56,000. What is that fair remuneration? That is your salary. Subtract करनी है and capital employed 156 क्या को दिया आपको? interest on capital माइनस करने के लिए, बराबर है। प्रॉफिट में से एक चीज नहीं हटानी है, 2 हटानी है। क्या?
salary or interest on capital. And Clever and Dull were to continue the partnership sharing profits and losses equally after the death of five. So UBSR is equal. 1:1. You got it? Following were the amounts of profits earlier years before charging interest on capital. 2013, 14, 15, 16. Is this July to June or Jan to December? साल खत्म हो रहा है Jan to December. You are required to calculate the value of goodwill. Show the adjustment. खाली goodwill का note करना है. You have to make only the note for goodwill. अब मेरे को 2 मिनट दिमाग लगा के बताओ, how will you tackle this